Okay, so good morning. So today, after finishing the lesson number 6 Hindi, let's see the back exercise of it. The back exercise using grammar is just covering your tenses, the simple present, the simple past, and the simple future tense, which we have already covered when before your half yearly exams. Half yearly exam में किया था ना? So let's revise. Let's just revise, look at the concept and recall what we have learned earlier. ठीक है? So Nancy, एक बार जरा मुझे ये पढ़ के बताओ. Read these sentences. Just read these sentences. Read this much part. Clara's Clara's grandmother teaches her every morning. Very It good. rains every afternoon in the hot season. Okay. Very good. So Lakshay, what does it tell you about the action? Is the action just occurred, or is in you are getting the sense the action is repeating every day? So कौन सी sense आ रही है आपको? What kind of actions are being talked out? What is the frequency of their repetition? Okay, Nancy, you tell. Lakshay doesn't know. Ma'am, every day. Every day. That means it's a habit kind of. It's a regular action, right? If you remember, हमने simple present जब किया था, तो हमने उसको पहले तो concept किया था, फिर साथ में ये बताया था उसका usage. Usage मैंने सब में करवाया था ना, you remember? So किसी को usage याद है? वो मुझे बताएगा. Where do we use the simple present tense? मैंने 2 या 3 points बताए थे आपको. So somebody remembers? Dipanshu, do you remember? कहाँ कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन कौन सी सिचुएशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं दीपांशु जो भी याद आ रहा है डोंट बी लाइक कोई बात नहीं अगर गलत भी होगा तो हरी अप Ma'am, we use the simple present tense to speak about repressed action or events. very good we use the simple present tense to talk about the repeated actions or events. That means those actions which occur on daily basis, everyday or regular basis, right? Or second, Nancy is raising hand. Okay, Nancy, once again. Ma'am, permanent truth, habitual action. Yes, we just said habitual, had the habits and permanent truths. The facts. For example, if I say पानी 100 डिग्री के टेम्परेचर पर उबलता है तो ये बात हर जगह अप्लाई होती है ना दैट वेर एवर कहीं का भी पानी हो तो वो 100 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव करते ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सिमिलरली आइस जो है पानी पे शुरू में फ्लोट ही करेगी है ना कोई भी आइस तो हम कहते हैं आइस फ्लोट्स ऑन वाटर चाहे आइस कहीं की भी हो इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट एंड ट्रुथ द सन राइजेस इन द ईस्ट किसी भी कंट्री में चले जाओ किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ तो सूरज पश्चिम से निकलता है जी ऐसा नहीं कहते ना हर कोई कहते हैं दैट the direction of rising of sun is east so the things which are truths which are everywhere known ऐसे truth which are universal truths ठीक है universally मतलब पूरे all over the universe universally truth ठीक है ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो या फिर हमारी प्रेजेंट में हमारी हैबिट्स मतलब जो काम हमारी आदत में शामिल है और आज की बात कर रहे हैं हम पुरानी आदत की बात नहीं कर रहे हैं आज की जैसे आजकल मैं रोज जूम क्लास अटेंड करती हूँ इट्स माय habit to attend the Zoom class. I attend my Zoom classes every day.
I attend. अब आपने एक चीज देखी, जब हमने बोला ice floats, ice floats, FLOAT, ये तो होगी वर्ब, फ्लोट मतलब तैरना, लेकिन मैंने उसके साथ एस लगाया, ठीक है। लेकिन जब मैंने बोला आई अटेंड, तो मैंने कोई एस नहीं लगाया, अटेंड भी तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट। मैंने बोला आई अटेंड, सो आई एम जस्ट using the base form, the root form of verb, which is also we call it the first form of verb. But अगर यहाँ पे देखें तो हम base form के साथ s यूज किया है, that means यहाँ हमने verb की first form के साथ प्लस क्या किया है, s. तो अब किसी को मेरा रूल याद आया जो हमने हाफ इयरली से पहले किया था, कि what is the rule or the syntax of writing a sentence in simple present tense? कोई बताएगा मुझे? Jagrit, will you tell us? Yes, Jagrit, unmute yourself and tell us. Yes, ma'am. हाँ, जोर से बोलो थोड़ा सा. When we run, जागृत, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो. when we run plus simple present tense का. ओके, आपकी आवाज क्लियर नहीं है जागृत, हम आपसे बाद में पूछते हैं. somebody who's gonna tell Eti, will you tell us? Okay, then please Yes. unmute and tell. हाँ, बताइए. मैम मैम एस हम यूज करते हैं सिंगुलर में और एस प्लूरल में. क्या सिंगुलर और प्लूरल होता है बेटा? क्या वर्ब सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है? क्या चीज सिंगुलर होती है और क्या चीज प्लूरल होती है? तो हम एस या एस, मतलब समझ नहीं आया मुझे, क्लियरली बताओ. ओके, somebody will add to मैम this. हाँ, बताओ बताओ बताओ. वेरी गुड. मैम आई डोंट नो. You don't know. You forgot. देखो अभी हाफ ईयरलीज कोई ज्यादा देर भी नहीं हुई है. Who will tell? साची, will you? साची, बताओ बच्चे. Try it. जल्दी करो. ही शी इट Very good. सिंगुलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म Very good. प्लस एस एस. अच्छा, सो साची ने हमें बताया कि he she it है अगर, पर ये he she it क्या है साची? What is this he she it? Which part of speech is this? आप बोल रहे हो he she और it अगर हो और ये सिंगुलर हो, it has to be singular, तब आप वर्ब के साथ s या es लगाते हो. यही बोला ना साची? Am I right? Am I right, साची? यस मैम. अच्छा, तो फिर s या es कब नहीं लगाते बेटा? साची ने हमें बताया he she it अगर सिंगुलर है. हाँ, मैम आई वी यू दे और प्लूरल ओके. I we प्लस you they और वर्ब प्लूरल. फर्स्ट फॉर्म. ओके, ठीक है. सो साची हमें कह रही है I we you they, बट अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया ये he she it और I you we they है क्या? What is this? What is this? Who will tell me? देखो, ये कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहेगा तो टेंसेस याद नहीं रहेंगे, टेंसेस याद नहीं रहेंगे तो इंग्लिश कभी करेक्टली नहीं लिखोगे, है ना? यू नीड टू रिमेम्बर, बिकॉज हम सेंटेंसेस जब भी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम टेंसेस की यूज कर रहे हैं, राइट? तो टेंसेस हैज टू बी ऑलवेज इन द माइंड. ये थोड़ी कि हाफ ईयरलीज के बाद पहले कराया था तो भूल गए. हु विल टेल? ये आई यू वी दे ही शिट को कहते क्या हैं? वेनिका,
ओके, जैस्मिन बताएगी. यस जैस्मिन. मैम सब्जेक्ट. Very good. So this is called subject of the sentence. अब ध्यान से सब सुनेंगे. So when the subject is he, she, it singular, we use base form plus s or es. अब आप यहाँ देखिए, जो ये ice है, ice is like we are referring to it's one thing, right? And it's only one singular, so that is why s or es, that is why s or es. अब floats के साथ es नहीं लगता, इसलिए सिर्फ s. लेकिन अगर मैं बोलूं क्लारा's ग्रैंडमदर, अब क्लारा की ग्रैंडमदर, एक तो ये शी सिंगुलर हो गया, सिंगुलर शी हो गया, राइट? क्लारा की ग्रैंडमदर इज सिंगुलर शी, राइट? एक औरत के लिए लगा है, सिंगुलर हो गया. टीच इज द बेस फॉर्म, टीच, उसके साथ es लगा है, टीचेस, राइट? अब क्योंकि जब हम टीचर्स की स्पेलिंग लिखते हैं उसमें सिर्फ s नहीं लगता है, es लगता है. सो वी हैव टू सी कि कहाँ s लगेगा, कहाँ es लगेगा, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग. सो बट द रूल इज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में, अगर वो सब्जेक्ट ही है, शी है, या इट सिंगुलर है, एक है, रेफरिंग टू वन पर्सन, जैसे क्लारा's ग्रैंडमदर इज वन पर्सन, वन थिंग, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es लगाते हैं. और अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लूरल है, तो हम ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट? और हम यूज कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हो, या हम किसी अपनी हैबिट, प्रेजेंट हैबिट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट हैबिट की बात कर रहे हो, या कोई रिपीटेड रेगुलर इवेंट हो जो प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं, हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो, रेगुलर, रेगुलर अकरिंग इवेंट्स एट द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, राइट? दैट डेली, एवरीडे, फोर्टनाइटली, मंथली, ईयरली. वो फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं कि रोज की ही हो सकता है साल में एक बार, लेकिन हर बार होता है. जैसे दशहरा हर साल आता है, दशहरा कम्स एवरी ईयर. अब इसकी फ्रीक्वेंसी अकर करने की क्या है? साल में एक बार, लेकिन हर बार आता है. दिस इज रिपीटेड एक्शन ऑन द ईयरली बेसिस, right? So I repeat, we use simple present tense whenever we need to talk about universal truth, right? Habits, the habits in the present, and regular repeated actions at a fixed interval of time. ठीक है? अब इसका यूज करने का तरीका क्या है? How to form a sentence in that? We take care that we use only the first form of verb, right? But if the subject is he, she, it singular, then we'll use s or es with the verb form. And how to make negative? किसी को याद है नेगेटिव कैसे बनाते हैं? शिवांश वत्स, बेटा याद है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ आई रीड, अब इसका नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? आई रीड माई लेसन्स एवरी डे, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? हरी अप एंड म्यूट योरसेल्फ. अच्छा इसको बोलो, आई गो टू स्कूल, इसको नेगेटिव बनाओ. I did not go to school. डिड नॉट, नहीं भाई नहीं, आपने नेगेटिव तो बनाया, बट यू आर नॉट राइट इन योर टेंस. यशिका, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, इस मतलब मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो ये मेरा रेपिटेड है, मैं अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ. आप तो शिवांश पास्ट में चले गए. यशिका, शी इज नॉट गिविंग. प्रीत सिंधर, आई गो टू स्कूल एवरी डे, नेगेटिव कैसे बनेगा?
भैया बुक में कहीं नहीं लिखा है, बुक में नहीं लिखा है, रोज तो बोलते हो। अच्छा कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वाला बनाओ जरा, जो आपकी रेगुलर आदत में हो। Ma'am, I don't go to school. यस, I आई don't डोंट गो go टू to स्कूल। आपने क्या यूज किया? डू नॉट। आपने क्या यूज किया? डू नॉट। तो जब भी Do not. नेगेटिव बनाना है डू नॉट, डज नॉट से बनाना है। डू नॉट किससे बनता है नेगेटिव? डू नॉट। डू कब लगेगा? जब आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगेगा। ही शी इट सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा। अब कुछ याद आया? एक बार जो वीडियो है दोबारा देख लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट वाली, सिंपल पास्ट वाली और सिंपल फ्यूचर वाली यूट्यूब चैनल पे स्कूल के जाके ना दोबारा से एक बार देख लेना। ओके, सो आई बिलीव इतना रिफ्रेशिंग हो गया होगा, अब बच्चों को काफी याद आ गया होगा कि हमने टेंसेस में क्या पढ़ा था, ठीक है? सो डू नॉट डज नॉट से हम नेगेटिव बनाते हैं, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो डू डज बाहर आ जाता है। ये सारी बात थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है? मुझे लगता है आज के लिए इतना ही है। अगर मैं सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर फिर से रिवाइज कराऊंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज आप भूल के बैठे हुए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी। सो लेट्स फर्स्ट डू ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा इस पे आ जाओ, एमसीबी का सब पेज नंबर खोल लीजिए, बैक एक्सरसाइज यूजिंग ग्रामर। सो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ लिखा है क्लारा's ग्रैंडमदर टीचेस हर एवरी मॉर्निंग। हर रोज पढ़ाती है। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन हॉट सीजन। हर दोपहर को हॉट सीजन में बारिश होती है। सो दोनों एक्शंस जो हैं रिपीटेड एक्शंस हैं, ठीक है? तो यहाँ हमें बताया है दैट वी यूज simple present tense to speak about repeated actions or events, right? Now read these sentences. It says Heidi arrives in Frankfurt tomorrow. अब ये जो है tomorrow है, कल होगा, ये अभी रोज का काम नहीं है, ये कल होगा। The holiday starts from 26th of October suppose, तो ये अभी हुआ नहीं है, ये होगा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है। यहाँ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और यूज है, वो क्या यूज है? जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, द फ्यूचर एक्शन लेकिन बहुत पक्का है और होने ही वाला है, ऐसे एक्शन को भी हम कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह देते हैं। वो ग्रामेटिकली करेक्ट बात है, वो गलत नहीं होगा। जो जैसे टुमारो देयर विल बी नो क्लास, है ना? तो आई कैन से टुमारो इज नो क्लास, इज भी लगा सकती हूँ, राइट? क्लियर? हेडी अराइव्स इन फ्रैंकफर्ट टुमारो है फ्यूचर, लेकिन सिंपल फ्यूचर आना चाहिए। ही विल अराइव इन फ्रैंकफर्ट टुमारो, क्या आना चाहिए? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? विल के साथ, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस सेंटेंस को हमें क्या कहना चाहिए? हेदी विल अराइव इन फ्रैंकफर्ट टुमारो, लेकिन हमने यहाँ बोला है हेडी अराइव्स इन फ्रैंकफर्ट टुमारो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और यूज है कि जब नियर फ्यूचर है उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है? नियर फ्यूचर विच इज श्योर टू हैपन, ओके? चलिए, नाउ वी ऑल्सो, यहाँ लिखा हुआ है वी ऑल्सो यूज, और यहाँ पे एक तरह से ये नियर फ्यूचर क्या हो गया? फिक्स्ड प्लान्स हो गया ना। ये हमारा फिक्स्ड प्लान है, ये पक्का होगा ही होगा, है फ्यूचर का लेकिन फिक्स्ड प्लान है। तो यहाँ पे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने एक और यूज क्या पढ़ा? दैट फॉर द नियर फ्यूचर वेयर द प्लान्स आर फिक्स्ड, पक्के हैं, शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड प्लान्स, वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। चलिए, नाउ आई वांट यू ऑल टू गिव मी आंसर्स फॉर दिस।
मैं सबसे one सेंटेंस पूछूंगी and you have to just identify. पूरा Silence please. Who is this? भी करना था. Somebody is talking. Please do not talk. Okay. अब फटाफट मुझे ये बताएंगे which sentence out of these 10 sentences is in simple present. तो आपने मुझे सिर्फ बताना है ये simple present tense में है या नहीं है. Let's start from Venika. Venika, unmute yourself and tell whether the Daksh का ध्यान आप बोलेंगे नहीं. Keep yourself quiet, muted. जिसका नाम ले सिर्फ वही unmute करेगा. Venika, hurry up. Grandmother likes to read. Shall I tick it? Is it in the simple present tense? Venika. Venika, hurry up. चुप मत बैठो. Yes, ma'am. आपकी आवाज नहीं आ रही है. अपना म्यूट ऑडियो चेक करो. ठीक है. I have heard your lip reading. Okay. Yes. Venika says yes. It's the sentence in simple present. Okay, Shashank. Next sentence, Shashank. Yes, ma'am. क्या करूं? टिक करूं या क्रॉस? क्या हो गया शशांक? Ma'am, tick. Please. Okay. Ma'am. Now next, Jasmine. Peter was talking to Heidi. Verb क्या है? Was plus first form talk plus ing. Is it in the simple present? Jasmine, is No, this? ma'am. No. क्या ये simple present नहीं है. Okay. Now, Eti. Yes, ma'am. Okay, the train reaches. देखो, singular train, one train, reach के साथ s या es. So yes, it is in the simple present. Okay. Next, Dipanshu. Ma'am, yes. कैसे yes कैसे बताओ जरा, क्योंकि यहाँ ये read first form है. यही सोच रहे हो ना, read first form है. बेटा ध्यान से देखो, read की first form read, read की second form को बोलते हैं read, लेकिन spelling क्या होते हैं? Same. और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रेड. स्पेलिंग क्या होते हैं? सेम. ठीक है. अब यहां देख के कंफ्यूज मत हो, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि देखो यस्टरडे लगा हुआ है. सिंपल पास्ट में देखो हमारे तीनों टेंसेस भी रिवाइज हो गए. सिंपल फ्यूचर यहाँ रिवाइज हो गया था. सिंपल पास्ट में याद आया, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में. सो अगर हम यहाँ देखें, ये yesterday पास्ट की बात है और यहाँ पे ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि रीड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में भी सेम स्पेलिंग होते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए. Right? So the children read the best stories yesterday. It is not in simple present. It is in simple past. आगे से ध्यान रखेंगे. Okay. Now, Sachi, hurry up. Next sentence. The housekeeper gives us our lunch at 12 o'clock. Yes. क्या बता सकती है साची, कैसे डिसाइड किया आपने कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? Ma'am, because housekeeper is only one. Very good. Housekeeper is only one. Subject is singular and verb के साथ क्या लगा है? And S या ES. Very good. SES. Shabash. Okay, Yashika, unmute yourself and tell. Next sentence. Please keep writing it in your book as well. Hurry up. The boy is running up the mountains. Is running. Run plus ing is MR. क्या ये फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट है? Yes, ma'am.
नो यशिका, इसका मतलब आपने हमें नहीं सुना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बोला था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस, जबकि यहाँ पे क्या है, इज एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे आईएनजी है, आईएनजी वाला कभी भी सिंपल टेंस नहीं है, वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके नेक्स्ट, शिवांश नेक्स्ट। शिवांश, व्हाट्स next sentence? Hurry up. The boy is running up the mountain. ये तो हो गया, this is cross. Next sentence, 8th वाला. Heidi will reach school. Heidi will reach school late today. Cross लगाऊं या tick लगाऊं? Is the sentence in simple present? Tick. Wrong. शिवांश भी नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, will plus first form. will plus first form मैंने अभी बताया था क्या होता है, सिंपल फ्यूचर। will प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे रीच क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में क्या लगा है, will, तो क्या हो गया ये सिंपल फ्यूचर। सो दिस इज नॉट प्रेजेंट टेंस। ओके नेक्स्ट, प्रीत सिंधर। हेदी मिसेस हर पेरेंट्स। जागृत आप बताइए, टाइम इज वेरी लेस, हरी आप। Ma'am, it is simple present tense. Yes, it is simple present tense. Why? Because देखो miss, MISS miss base form of verb, उसके Ma'am, साथ Mrs. S और ES लगा हुआ है। Okay. Now जागृत, last sentence. Ma'am, Tick या cross? Yes, because goats plural हो गया, एक गोट तो नहीं है, ज्यादा गोट है, इसलिए इनके साथ S या ES नहीं आया। Follow. Right? So please complete this exercise. A part. Have you all done it? yes. Shanveer came very late. जब तक सारा concept हो गया. Okay, now as you have done it, make sure you revise it. I want you please try reading the simple past tense and the simple future tense from your grammar books. ये grammar book के pages हैं, ठीक है? Simple present and simple past, only the rule structures and कहाँ use होता है. उसके बाद try to solve the B and C part. Next class में हम B और C part discuss करेंगे. I want you to give me answers. Right? Clear हुआ? Okay, ma'am. So you will revise your tenses, simple tenses, Okay, ma'am. and complete B and C part. Even try doing D part. We will do BCD discussion in the next class. Okay, that's all for today. Time is about to be over. Just any time meeting could be over. Thank you. Bye, ma'am. Bye, beta. Bye, ma'am. Okay. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye.